सर आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्मोग्राफी में मतलब यू हैव स्पैन अक्रॉस लैंग्वेजेस एंड थीम्स फ्रॉम मराठी टू हिंदी एंड फ्रॉम टैबू टॉपिक्स टू पेट्रियोटिक थ्रिलर सो व्हाट ड्राइव्स योर चॉइस ऑफ स्टोरीज? Basically, I want to have as much variety as possible in stories that I want to tell the people, and not that I have actually thought about it, that I want to have a particular subject like Chhatriwali, which was a taboo topic, or this one as a patriotic thing. I usually select a story on the face of it. If the story comes to me and if it is interesting, I just grab it, and that's the way I look at the films. I don't look at it from the genre perspective, yeah, the way the stories are. Most they should be interesting enough to be told. How do you adopt your storytelling when directing for different languages and audience? See, mainly I've done Hindi and Marathi. So, being a Marathi, I understand the kind of audiences that we have in Marathi speaking society, especially in Maharashtra. And we have a certain type of understanding, we have a certain type of culture. So, when I'm doing a Marathi film, I usually try and make something which is connected to the soil of the Marathi audience, Marathi state. And when we talk about Hindi subjects, we also need to understand that pan India, we have a diverse culture, we have many languages, many cultures, but there is something which is common, and which is the fact that we all belong to one nation, Bharat. So that way I have to I keep that in mind, and try to talk about subjects which are common, which have some common points for everybody. So usually that is the difference. Also the scale that we talk about, that also is a different in both, in Marathi and Hindi. So I think you have to just adapt to the situation and make a film accordingly. सर आपको लगता है कहीं ना कहीं मराठी सिनेमा में स्पेशली टॉकिंग अबाउट मराठी सिनेमा रीजनल सिनेमा स्टोरी टेलिंग वहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब कि अलग रहती है और डिफरेंट रहती है कंपेयर टू हिंदी सिनेमा? स्टोरी टेलिंग तो मुझे लगता है हर लैंग्वेज में अलग ही होती है, क्योंकि हर स्टोरी का अपना एक मतलब उसका एक अपना तरीका होना चाहिए। हर फ़िल्म मेकर का अपना एक तरीका होता है, सो वो मुझे लगता है अलग होता है। मराठी स्पेशली मैं कहूँगा रीजनल फ़िल्म्स में भी हमारे पास में देखा जाए तो तमिल भी रीजनल है, तेलुगु भी रीजनल है, लेकिन तेलुगु का बजट, उसका स्केल ये काफ़ी बड़ा है। मराठी में आपके पास में काफ़ी लिमिटेशंस हैं, बट इस वजह से मैं कहूँगा कि फ़िल्म मेकर्स काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं फ़िल्म मेकिंग करते वक़्त, और वो तरीका या ट्रीटमेंट ऐसे ढूँढते हैं कि जिससे वही कहानी बड़ी इफ़ेक्टिवली आप बता सकें। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली ये बजट या उसका तरीका, ये सब का मिल-जुल कर एक इफ़ेक्ट बनता है कि कितना इफ़ेक्टिवली आप आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाते हैं। चाहे इस तरह से कहो या उस तरह से, अगर वो इफ़ेक्टिव है, तो आपकी फ़िल्म अच्छी बनी है। Sir, Chhatriwali was a bold move, especially for a Hindi directorial debut, taking the subject of condoms and sex education. What inspired you to choose this subject? I think that was the need of the hour. Today, we are in a world where information is available on your fingertips. Anybody, any child, accessing internet very easily. Sometimes, so you don't even know what exactly that child is watching. So it's always better to give a correct information at a correct age, and there is no harm in talking about matters which are extremely important for everybody. So I think Chhatriwali was based on that thought, that the entire family should sit together and talk about certain things which we thought as taboos, but they are not. They are very essential matters of our life. So, talking about bucket list with Madhuri Dixit, sir, uh, which marked her Marathi film debut, was it directing such a celebrated actress in a mother tongue? How was it? It was a delight, because when you are actually working in your mother tongue, I think you are the most comfortable, and with such a big actor, such a celebrated actor, you also have different energy. You feel elated, you feel happy about it, and so I think, and also the kind of actor she is, the person she is, she's a very fine actress. She's also a director's actor. So I never had a problem communicating with her, reaching out to her, sharing my ideas, and getting the work done as a director. So I think it was wonderful to work with Madhuri ji. So, how do you approach making a personal emotional story like bucket list resonate with a wider audience?
I think emotions are everywhere, right? So all the audience, they are emotional somewhere down their minds and hearts. So I just had to think about what a common factor I can find. And when you talk about emotions, the intrapersonal relations, or the dynamics of a family, mostly we find all those emotions in every household of India. So I just tried to be on that connect. So Ground Zero stars Imran Hashmi and is shot in Kashmir. So tell us about the prep that went into this intense project. See, whenever you have a subject like this, the actor needs to go through certain level of training. So definitely Imran and other actors also went through that training. BSF helped us a lot in that. So they trained the actor for 3-4 days. They told them how to hold the gun, what is the stance, what is the code of conduct, how to salute, and all that stuff. So as an actor, he had to sort of understand a BSF soldier's life from the point of view of uh, doing the duty. So definitely that went in, but more than that, he also tried to understand the psyche of the character. So we talked about it a lot. And Dubey ji, whose character he is playing in the film, he was also instrumental in giving us more details of the character. So I could actually take the details from Dubey ji and give it to Imran. We had a lot of discussion about portraying certain elements of the film, certain parts of the character. So that way he prepped himself and he got into the shoes of Dubeji, and eventually he carried it on his own. So he understood the character, but he did not imitate. He's not a mimicry artist. He's an artist who actually blended the real life character into his own, and he carried it with him. So इमरान हाशमी की कैरेक्टर की बात की जाए तो मतलब इमरान हाशमी की एक इमेज है जी सीरियल की और लवर बॉय की इमेज है तो जी उस चीज को कैसे उन्होंने तोड़ा कुछ बता सकते हैं आप इस बारे में? सी, इस इमेज को तोड़ना या ना तोड़ना ये तो अब स्क्रीन पे ही दिखेगा। और मेरे हिसाब से जिस तरह से फिल्म बनी है, मैं बहुत खुश हूँ कि इमरान ने उस कैरेक्टर को नहीं बल्कि अपने अदाकारी को आगे बढ़ाया है। और वो बहुत ही फाइन एक्टर है, वो तो हम सबको ही पता है। अब जो भी उनकी इमेज रही हो, वो काफ़ी साल पुरानी इमेज है, और उस इमेज से ही उनको एक शोहरत भी मिली, एक एक्टर का एक अलग मकाम उन्होंने हासिल किया। लेकिन वो एक अच्छे एक्टर भी है उस इमेज के अलावा भी, जो हमें ग्राउंड ज़ीरो में दिखता है। और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि चाहे इस तरह का रोल हो जो उन्होंने कभी किया नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर है, वो इस रोल को बहुत ही बखूबी निभा पाएंगे, और वो वैसा उन्होंने किया है, स्क्रीन पे वो दिखता है। मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से। So how was it shooting in Kashmir both from a cinematic and emotional perspective? देखिए, कश्मीर तो सच में इतना सुंदर है, आप कैमरा कहीं पे भी रखिए, आपको हमेशा सुंदर ही दिखता है। तो उस मामले में मैं बहुत खुश था कि इतनी सुंदर चीज़ों को मैं कैमरा में कैप्चर कर सकता हूँ। हालाँकि हमारी फ़िल्म जो थी उस वक़्त, ये 20-22 साल पहले की कहानी हम दिखा रहे हैं। तो उस कहानी में कश्मीर का रंग थोड़ा अलग था, उस वक़्त टेररिज़्म अपने पीक पे था। लेकिन उसके बाद भी वो वैली इतनी सुंदर है कि आपको उस सुंदरता को आप छुपा नहीं सकते हो। तो डेफ़िनेटली वो एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी। और वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, आपके साथ में इतना अच्छा घुल-मिल जाते हैं, आपको मदद करते हैं। तो उसमें हमें ऐसा कभी लगा नहीं कि हम किसी ऐसी जगह पर शूट कर रहे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हो। हमें तो वहाँ पे हमेशा सबसे सपोर्ट ही मिला है, और मैं खुश हूँ कि हम इस तरह की कहानी वहाँ शूट कर पाए हैं। और मेरे ख़्याल से बहुत कम फ़िल्में, इस कहानी वाली फ़िल्में वहाँ बनती हैं। अब शायद बनना और शुरू होगा, और मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड ज़ीरो उस चीज़ की पहल करे। सर आपकी दो फिल्म रिलीज हो रही है ग्राउंड जीरो और देव बानुस ऑन द सेम डे सर दैट्स क्वाइट रेयर हाउ यू आर नेविगेटिंग द एक्साइटमेंट एंड प्रेशर देखिए, किसको वोट कर रहे हैं सर? वोट करने का तो मेरी दोनों फ़िल्में हैं, तो मैं तो चाहूँगा दोनों फ़िल्में लोगों ने देखें। और मुझे लगता है कि शायद लोग देखेंगे भी, क्योंकि जब वो एक फ़िल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा, अच्छा इस डायरेक्टर की एक और फ़िल्म है। चाहे वो पहले देवमानुस देखे या ग्राउंड ज़ीरो देखे, वो दूसरी फ़िल्म ज़रूर देखेंगे, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। और इसमें नंबर देना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है, दोनों फ़िल्में मेरे दिल के पास है और दोनों मेरी फ़िल्में हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि हर किसी ने दोनों फ़िल्में देखनी चाहिए। हालाँकि प्रेशर प्रेशर काम ख़त्म करने का, अच्छी तरह से ख़त्म करने का, ये थोड़ा-सा होता है, समय आपको ज़्यादा लगता है, बट इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि ये मौका शायद कभी किसी को मिला नहीं है आज तक। जितना मेरी जानकारी है, मैं शायद पहला ऐसा डायरेक्टर हूँ जिसकी 2 अलग भाषाओं की फ़िल्म एक ही दिन रिलीज़ हो रही है, और दोनों के विषय भी बहुत अलग है।
तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मैं अपनी 2 फ़िल्में इकट्ठा लोगों के सामने ला पा रहा हूँ। So, how different are the two films in terms of tone and genre? What do you hope the audience take away from? I think both the films are completely different. There is nothing common other than the fact that the director is the same. कहानी अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, भाषा अलग है, उसके कलाकार अलग है और जिस तरह से हम वो कहानी बता रही है वो नैरेटिव ट्रीटमेंट भी अलग है। और मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि दोनों फ़िल्में मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है और वो दोनों फ़िल्में ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा। ये डेफ़िनेटली कॉमन है। So, Ground Zero will be screened in Srinagar at a red carpet event, something that has happened in a long time. So, what does the movement mean to you personally and as a filmmaker? सी देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि आई थिंक 38 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि कोई रेड कारपेट इवेंट हो रहा है सिनेमा के लिए श्रीनगर में। ये सुनने के लिए बहुत आम बात लगती है, सामान्य बात लगती है, लेकिन देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एरा है जो हमने शायद मीडिया में पढ़ा हो या हमने न्यूज़ में देखा हो, लेकिन वो एरा वो था जहाँ पे एक बेसिक चीज़ जो आज हम मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में बैठ के जिसे हमें एक बेसिक चीज़ मानते हैं कि सिनेमा हॉल हॉल होता है और वहाँ पे फिल्में लगती है। ये बड़ी कॉमन सी बात है। वो कॉमन बात भी कश्मीर में कॉमन नहीं है। वो भी उनके लिए लग्ज़री नहीं है, वो उनके लिए मैं कहूँगा ये तो ब्लेसिंग है उनके लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, काफ़ी दुखद बात है कि 38 सालों में आज तक वहाँ पे कोई फ़िल्म प्रीमियर नहीं हुई है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि मेरी फ़िल्म ग्राउंड ज़ीरो के द्वारा हम इसे वापस शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक नहीं, ऐसी 100 फ़िल्में वहाँ पे प्रीमियर करें और वहाँ पे एक थिएटर है, उस जगह पर 100 थिएटर बने और उस कश्मीर को हम अपना ही देश है, अपने ही लोग हैं, तो हम किसी और रीजन के जैसा ही उसको देखें और वो रीजन भी वैसा ही बने और मुझे बहुत बहुत विश्वास है कि वो रीजन वैसा ही बन रहा है। So, do you feel the screening in Kashmir can be a turning point in how cinema is consumed or celebrated in that region? I hope it does. We are all hopeful that this event will mark a different, start of a different era. And if it does, I'll be the most happy person. And I would love to go and watch other films also in Kashmir, Srinagar, Baramulla. There were theaters earlier also. But unfortunately, now there is only one theater, Srinagar. Mein. I'm hoping that it multiplies into 2 to 4, and just the numbers should increase. सर यूजुअली वॉर फिल्म में देखा जाता है तो एक्ट्रेसेस की जो बात की जाती है तो एक्ट्रेसेस का रोल जो है बहुत ही कम दिखाया जाता है वॉर जॉनर की फिल्मों में। तो आप क्या कहेंगे इस फिल्म में एक्ट्रेसेस का रोल कितना है, क्या है? मैं थोड़ा इससे डिफ़र करता हूँ। इसमें कम रोल शायद स्क्रीन टाइम के कंपैरिजन में ज़रूर होगा या होता है, लेकिन इम्पैक्टफुल होता है। देखिए लेंथ कितनी है इससे ज़्यादा इम्पैक्ट कितना है वो ज़रूरी है। तो इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, आप फिल्म देखेंगे तो रियलाइज़ होगा कि वो बहुत ही ज़रूरी कैरेक्टर्स है। एक ज़ोया हुसैन ने प्ले किया है, एक सईद तामनकर ने प्ले किया है और दोनों के रोल्स ऐसे हैं कि उस फिल्म को बहुत मदद करते हैं, उस फिल्म का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि फीमेल कैरेक्टर्स बस नाम के लिए हैं, वो उस कहानी का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? देखिए फ़ैन का तो मुझे पता नहीं, मेरा ऑडियंस ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऑडियंस ने इस फ़िल्म को अपनी बना ले। 25 तारीख को दोनों फ़िल्में आ रही है, ग्राउंड ज़ीरो और देवमानुस। वो दोनों फ़िल्में थिएटर में जाके ज़रूर देखें, आपको वो फ़िल्में पसंद आएगी इसका मुझे विश्वास है। और दोनों फ़िल्मों की कहानियाँ हैं, ट्रेलर्स ऑलरेडी बाहर हैं और हमें ट्रेलर में बहुत प्यार मिला है लोगों से। लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, वो सब लोग फ़िल्म देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वही नंबर और भी बढ़े, थिएटर्स में लोग जाएँ और कहानी देखते वक़्त जैसे वो एन्जॉय भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपके मन में इस कहानी के द्वारा अगर कोई विचार शुरू हो जाए, कुछ अगर थॉट्स आपके मन में आने लगे, तो उसको आप आने दीजिए और उस थॉट्स पे आगे जाइए अपने जीवन में। सर एक और क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि मतलब कि थिएटर्स की बात की जाए अगर, जी। तो मतलब थिएटर्स में इतनी फिल्में जो आ रही हैं बट वो इतनी चल नहीं पा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या वजह मानते हैं आप इस चीज़ को और क्या लगता है कि ग्राउंड ज़ीरो क्या वो मिथ को ब्रेक कर पाएगी? देखिए मिथ तो नहीं है ये बात तो कहीं न कहीं थोड़ी सच है कि लोग आजकल थिएटर में कम जाते हैं। लेकिन उसके कारण जो है, उसके कई कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण ये है कि थिएटर में जो फ़िल्में लगती है, उसमें थिएटर का जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, कहीं न कहीं कुछ फ़िल्मों में वो मिस हो जाता है।
तो आज वो फ़िल्में चलती है, अगर आप छावा की बात करेंगे या पुष्पा 2 की बात करेंगे, जो अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने रन किया हुआ है। अगर आप वो फ़िल्में देखेंगे तो उसमें सिनेमैटिक एलिमेंट्स हैं, वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको उसमें मिलता है। इस वजह से लोग थिएटर में जाना पसंद करते हैं, और ये बात ज़रूर है कि अगर आपकी फ़िल्म वो एक्सपीरियंस नहीं दे रही है, तो शायद आपकी फ़िल्म के लिए लोग थिएटर में नहीं जाएँगे। ग्राउंड ज़ीरो में हमारी कहानी ही कश्मीर में बेस्ड है। अगर आप कश्मीर देखेंगे तो वादियाँ हैं, खूबसूरत पीछे पहाड़ हैं। तो वैसे ही हमारी फ़िल्म जो है वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए ही बनी है। ऊपर से जो कहानी हम बता रहे हैं, वो कहानी अगर आप ट्रेलर में देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उस स्केल पे हमने बनाने की कोशिश की है, जो एक सिनेमा थिएटर में ही देखने लायक होता है। उसका जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वो सिनेमा थिएटर में आपको मिलेगा। और इस वजह से मुझे लगता है कि जब फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो ऑडियंस को ये रियलाइज़ होगा कि ये फ़िल्म थिएटर के लिए ही बनी है, और उसका सबसे ज़्यादा अनुभव और उसका एन्जॉयमेंट थिएटर में ही होना चाहिए। लास्टली क्या मतलब कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं आपके? जी, कोशिश तो अच्छी फ़िल्में बनाने की है। कुछ फ़िल्में पाइपलाइन में हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा उसके बारे में बात करना, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बात बता सकता हूँ कि फ़िल्मों के ऊपर काम हो रहा है, अच्छी कहानियाँ। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि एक जैसी 2 कहानियाँ नहीं बनाऊँ। तो इसके बाद भी आने वाली फ़िल्में, अब तक बनाई हुई कहानियों से अलग कहानियाँ लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ।